Okay, let's start type 2 of sentence completion and as you know मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में हम बेसिकली लॉजिक बेस्ड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो टेक्निक्स सबसे पहले है इसकी रीस्टेटमेंट, देन वी हैव कंपैरिजन, देन वी हैव कंट्रास्ट, देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट एंड एट द एंड बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली दैट इज वी हैव टू बी careful about negative words. Let's take these techniques one by one via MCQs और फिर हम इनके solutions के ऊपर भी हम बात करेंगे. Here we go. Restatement is what? An MCQ is just in front of you. The City Council formed a committee to simplify several dozen blank city ordinances that were unnecessarily complicated and out of date. तो आपको देखिए रीस्टेटमेंट क्या है। रीस्टेटमेंट कहते हैं बेटा जब आप एक बात कर चुके हैं बाद में दोबारा उसी बात को आप कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड रीस्टेटमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है, दैट वर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एंड आउट ऑफ डेट। दिस इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ आवर प्रीवियस पॉइंट, दैट इज दे वांट टू सिंप्लीफाई। तो आप ये देखें कि ऑर्डिनेंसेस के क्या था, आपने रीस्टेटमेंट उसकी दी कि ये कॉम्प्लिकेटेड हैं और आउट ऑफ डेट हैं। आपने अब क्या करना है, बेसिकली यू आर सर्चिंग फॉर सम वर्ड which is equivalent or which can restate this idea and this idea of complicated and out of date. Here we have the options, factless, empirical, Byzantine and Slovenly. Empirical is definitely is familiar to you क्योंकि आप इसे chemistry में किसी science में पढ़ते रहते हैं। It means what? It means a very simple thing. So ये तो हो नहीं सकती because it's an antonym of complicated and out of date. Same is the case with factless. Factless means without any आप कह सकते हैं fault या courage, इस तरह की आप इस बात करते हैं, there is no sense of complication. And slovenly mean passive. Again, it is not connected with the ordinances or documents. We are left only one choice, and that is Charlie. Byzantine. Let's talk about what is Byzantine. Byzantine actually is some word, as you can see in the definition, is an adjective that means highly complicated and intricate. Here you are looking for a restatement of the clue word complicated and out of date. जो बात मैंने की exact वही इसकी explanation और इसका reference है, and for something that needs simplifying. अब हम देखते हैं कि हमें restatement के लिए कौन कौन से क्लूज हमें कंसीडर करने होते हैं कि अगर वो वाले क्लूज आ जाएं तो इसका मतलब है हम रीस्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। हियर वी हैव द सिग्नल वर्ड्स फॉर रीस्टेटमेंट और वो क्या है, नेमली, इन अदर वर्ड्स, इन फैक्ट एंड दैट इज। Okay, let's move toward the next, that is restatement का एक MCQ. I have always admired Irfan's semicolon. I have never seen him rattled by anything. Never rattled, never rattled. अब rattled किसे कहते हैं, disturbed को। तो never rattled is equal to what? That is relaxed. अब हम कहेंगे कि ये क्या हम डिस्कस करें। बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द वर्ड सेमी, ऑन द punctuation mark semicolon. Whenever you are provided with semicolon, it means that one part of sentence is a reflection of the second part. तो आगे जो बात की गई है, it's a reflection of the previous one. और वो reflection क्या होनी चाहिए, rattled by anything अगर है तो इसका मतलब है rattled, not rattled by anything is equal to very much relaxed. अब देखते हैं इसके ऑप्शन, कंपोयर, प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी तो प्रोप्राइटरशिप से होती है, एंड कंपंक्शन, पंक्शन, कंपंक्शन बेसिकली किसी चीज की डिस्टर्बेंस को कहते हैं, एंड नॉस्टैल्जिया इज अ वेरी कॉमन वर्ड, नॉस्टैल्जिया हैज नो कनेक्शन विद इट। तो नॉट रैटल्ड इज इक्वल टू व्हाट, अब अगर सेंस बनाए तो कंपोज, कंपोयर, सो बेस्ट चॉइस इज अल्फा। Let's move toward the second technique, that is comparison. Comparison means what? When one thing is compared with something else. Here we go. Anna was cleared of all charges. Similarly, Sam was. अब ये क्या किया, सिमिलरली ने कनेक्ट किया, कंपैरिजन दे दिया, आइडिया आपको दे दिया कि आपने दोनों सेंटेंसेस को किस तरह करना है। अब आप कहेंगे इसी कंपैरिजन में हम कोई और वर्ड यूज करते तो कंट्रास्ट भी आ सकता है, बिल्कुल। ऑन कंट्रेरी अगर कहते तो इसका मतलब है कुछ और आ जाता। तो कंपैरिजन और कंट्रास्ट में एक डिफरेंस चलता है। कंपैरिजन आप एक डोमेन में रहते हुए करते हो, कंट्रास्ट आप अपोजिट साइड्स पे जाके करते हैं। तो हियर वी हैव, अब आप देखें क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस के बारे में हमने कुछ करना है। सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन कहते हैं किसी को सॉलिसिटर, ये जैसे मिस्टर चिप्स के अंदर भी था। विंडिकेटेड, इम्प्लीकेटेड एंड कंडेम्ड।
तो विंडिकेट किसे कहते हैं? अच्छा, हम देखते हैं कंडेम नहीं हो सकता क्लियर के साथ। इम्प्लीकेट तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है, सॉलिसिटिंग का मतलब होता है किसी को परसुएट करना। वी आर लेफ्ट ओनली वन चॉइस, दैट इज विंडिकेट। विंडिकेट के मीनिंग्स भी यही होते हैं बेटे। अच्छा, अब देखें, मैं आपको दोनों टेक्निक से चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या? एक तो मैं आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग की हेल्प से कर रहा हूं, दूसरा मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। कैसे? देखो भाई, कंडेम्ड, सॉलिसिटेशन, इम्प्लीकेटेड का ताल्लुक क्लियर्ड के साथ नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? तो यू आर लेफ्ट ओनली वन चॉइस। अच्छा, यहां पे आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त सहूलत भी मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो क्या है? देखिए बच्चों, अब सारे वर्ड्स अगर आप देखते हैं, चारों ऑप्शंस देखते हैं आप, इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ हमें सुने हुए लगते हैं, फीलिंग्स ऐसे आती है कि हाँ जी, वी नो दीज वर्ड्स। और जो बीटा है, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, इस दुनिया का है ही नहीं, हमारे वहम गुमान में ही नहीं था कि इस वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, हम जानते ही नहीं है। क्या हमें इसके मीनिंग्स को जानने की जरूरत है टू सॉल्व दिस एमसीक्यू? ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ एमसीक्यू उसकी सोल्यूशन। और वो क्या है? कंडेम्ड इज अ नेगेटिव, implicated is a negative, solicitation is to follow something, right? Persuasion, it has nothing to do with the charges. अब आपने तीनों ऑप्शंस ड्रॉप कर दिए, इसे कहते हैं एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस। क्या टेक्निक है बेटा? एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन, कि आप तीनों ऐसे ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देते हो जो आंसर हो ही नहीं सकते। अगर वो आंसर नहीं हो सकते, चाहे उनके मीनिंग्स आने हैं नहीं आने हैं, जो जो भी केस है, आपने उन्हें निकाल दिया, बाकी रह गया आपके पास विंडिकेट। अब आपको इसके मीनिंग्स नहीं आते, यकीन है मुझे आपकी इस बात का कि आपको इसके मीनिंग्स नहीं आते, क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे पता है आपको नहीं आते होंगे। लेकिन क्या इसके मीनिंग्स जानना जरूरी है? आंसर इज नो। व्हाई? अरे भाई, 3 हो नहीं सकते, जो चौथा बच गया वो आंसर ही है। व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग्स? गॉट इट? सो द बेस्ट चॉइस इज बीटा। हियर वी गो। और हमने कंपैरिजन में किन वर्ड्स को देखना है, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इन वर्ड्स की लिस्ट बना लें, इन वर्ड्स को लिख लें, जैसे लाइकवाइज, सिमिलरली, एंड, जस्ट एज, फॉर एज मच एज, इस तरह, फॉर एग्जांपल, एज शोन, एज इलस्ट्रेटेड बाय। तो ये एक तरह की कंपैरिजन है, एक तरह की सेमनेस है। नेक्स्ट कैटेगरी में जा रहे हैं जी, दैट इज कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट में क्या होता है? मैंने कहा कंपैरिजन एक डोमेन के अंदर रहेगा, कंट्रास्ट क्या होगा? अपोजिट में जाएगा। Although the tiger is a solitary beast, although आ गया, कंट्रास्ट सिग्नल आ गया। Its cousin the lion is a blank animal। अब आप सिंपल देखें, सॉलिटरी का आपने कंट्रास्ट बताना है। क्या करना है? सॉलिटरी का कंट्रास्ट है। सॉलिटरी का कंट्रास्ट क्या होगा? डेफिनेटली समटाइम सॉलिटरी अगर तन्हा रहने वाला है, अकेले में रहने वाला है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसका अपोजिट वो होगा जो बेसिकली क्या होगा? जो सोशल होगा, जो मिल के रहता होगा, जो सोसाइटी में रहता होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। सेग्रीगेशन, सेपरेशन है, ये तो सॉलिटरी से निकलता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रो, एक होता है एक्सट्रो। इंट्रो का मतलब क्या है? अपने आप से। और एक्सट्रो का मतलब होता है जो बाहर से। इसका मतलब है सेग्रीगेशन और इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ एटलीस्ट सॉलिटरी। उसके बाद बचा डेम्यूर और ग्रीगेरियस। डेम्यूर कहते हैं, ये आपका यूएचएस का, उसका पीएमसी के अंदर भी ये वर्ड लिस्ट में मौजूद है। बेसिकली तो पीएमसी ने वही वर्ड लिस्ट ली है जो यूएचएस की है, तो बोथ थिंग्स आर ऑलमोस्ट अप टिल नाउ सेम। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डेम्यूर के अंदर क्या है? डेम्यूर बेसिकली शाय को कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगेन the best choice is beta, that is gregarious। अब आप इसके सिग्नल वर्ड्स भी साथ देख लें कि किन वर्ड्स के यूज के साथ हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि अब हम कंट्रास्ट को सर्च करेंगे। कौन कौन से हैं देखें। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लाजमी बनाने हैं, लाजमी देखने हैं, मेमोराइज कर लेना, यही आपको हेल्प करेंगे टेस्ट को अटेम्प्ट करने में। दाओ, ऑल्दो, हाउएवर, डिस्पाइट, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, बट, हाउएवर, डिस्पाइट और ऑन द कंट्रेरी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉज एंड इफेक्ट। अब जैसा कॉज होगा वैसा इफेक्ट आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपसे कहूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल, आगे क्या बताओगे? पास के फेल? क्योंकि एवरी कॉज हैज इट्स लॉजिकल इफेक्ट। यू कैन नॉट वायलेट द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कॉज। क्लियर होगी बात? देखिए बेटा, अगर आप इसके एक और भी कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन को, नेचर को समझने का एक और भी जबरदस्त तरीका है। अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है, ठीक है ना, और वो हंस पड़ता है, जिसने थप्पड़ खाया वो हंस पड़ता है, तो दोनों में से एक लाजमी एबनॉर्मल है। या मारने वाले को खाने वाला एबनॉर्मल समझ रहा है, या खाने वाला एबनॉर्मल है जिसको मारने वाले ने मार दिया। क्लियर? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो ये है कि इफ समबॉडी स्लैप्स समबॉडी एल्स, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि उसके कम अज कम एट लीस्ट
एंग्री लुक तो दे सकता है ना। तो दैट इज द नेचुरल रिएक्शन. एवरी कॉज हैज इट्स नेचुरल इफेक्ट. Here we go with the example. A truck stole her parking spot. Consequently, Sally's look showed her displeasure. बताएं, एक चीज की क्या हुई, रिजल्ट क्या है, स्टोल, चोरी हुई. तो कोई चीज अगर चोरी हो गई है तो क्या उसके ऊपर लुक कोई अच्छी होगी, और वैसे भी आप डिस्प्लेयर भी यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं. तो स्काउलिंग है, स्माइलिंग है, फाउलिंग है और बीमिंग है. बीमिंग शाइनिंग के लिए है, स्माइलिंग हंसते हुए, ये तो बिल्कुल ही awkward हो जाएगा. फाउलिंग का मतलब है अटखेलियां करना, ठीक है, या मजाक उड़ाना, कुछ इस तरह की. तो एक ही बचा, दैट इज स्काउल. स्काउल कहते हैं बेसिकली जब आप कोई एंग्री लुक देते हो. सो द बेस्ट चॉइस इज स्काउलिंग. और आप इसके ऑप्शंस देख लें, इसके जो सिग्नल वर्ड्स है वो आपने लाजमी देखने हैं. कॉज एंड इफेक्ट में क्या क्या आता है, दस, देयरफॉर, consequently, and because, and phrases such as due to, as a result, leads to, etc etc. क्लियर होगी बच्चे बात. तो ये था आपका कॉज एंड इफेक्ट. अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी, बीवेयर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स. अब ये एक ही एमसीक्यू को 2 मरतबा में डिस्कस करूंगा, सिर्फ ये समझाने के लिए कि नेगेटिव वर्ड के साथ आपको क्या कुछ करना पड़ सकता है. सेंटेंस है बेटा, ही वॉज ब्लैंक पर्सन because he did not make many public addresses, but those he made were memorable. जो उसने पब्लिक एड्रेसेस या खिताब किया बहुत जबरदस्त किया, तो ये तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है. अब इस सेंटेंस को देखें तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव. वेरी गुड. इसका मतलब है यहां पे हम किसको ब्लैंक को फिल करेंगे, किसी पॉजिटिव वर्ड के साथ. रेटिसेंट एंड एलिगेंट. एलिगेंट जो है वो पर्सन के साथ नहीं आएगा. इंस्पायरिंग, जो लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि मेमोरेबल है, लोगों ने मेमोराइज किया ना. एलिगेंट तो वो खुद होगा, मेमोरेबल तब होगा जब वो इंस्पायरिंग होगा. तो थोड़ा सा इसको भी देखेंगे आप. एरोगेंट एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहां पे हमारे पास इसका आंसर बन रहा है क्या, एन इंस्पायरिंग. अब हम इसको करते हैं चेंज. ही वॉज नॉट पर्सन. अब क्या नॉट आया, नॉट के साथ अब आप इंस्पायरिंग लगाते हैं तो इसका मतलब है सारा सेंटेंस कोलैप्स कर गया. फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यहां पे भी कोई नेगेटिव वर्ड लगाएंगे. अब एलिगेंट था, एरोगेंट था, ये उसके पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड थे. स्पीचेस की बात करेंगे तो रेटिसेंट. रेटिसेंट क्या है, खामोश, कम बोलने वाला. ही वॉज नॉट रेटिसेंट पर्सन. ऐसा नहीं था जो शाय हो, जो कम बोलता हो. क्लियर होगी बात, बात समझ आ गई. क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव पोर्ट्रे करना चाहते हैं और आपके पास नॉट आ गया है तो दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट क्लियर होगा, अदरवाइज पॉजिटिव इफेक्ट क्लियर नहीं हो सकता. यहां तक आपको आंसर क्लियर हो गया. नॉट है तो फिर रेटिसेंट, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बिकम एन इंस्पायरिंग. डन. तो बीवेयर ऑफ नेगेटिव. अगर नेगेटिव में क्या कहें, नो है, नॉट है, नेवर है, डन, हार्डली है, स्केर्सली, इस तरह के सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको नेगेटिव होते हैं और आपने इनको ठीक करना है. अब हम चल रहे हैं अपनी टाइप 3 की जानिब, और टाइप 3 में हमारे पास क्या है, टाइप 3 में हमारे पास है सेंटेंस कंप्लीशन, बट दैट कंप्लीशन इज वोकैब बेस्ड. अब वोकैब बेस्ड की जरा टेक्निक्स देख लेते हैं. सबसे पहले तो वोकैब बेस्ड में टेक्निक्स है, कलोकेशन का ध्यान रखना है, होमोफोन्स का ध्यान रखना है और डेफिनेशंस का ध्यान रखना है. वोकैब के अंदर ये 3 टेक्निक्स की हेल्प से उसने एमसीक्यू आपके एस्टैब्लिश करने हैं. क्लियर होगी बच्चे बात. हियर वी गो विद द फर्स्ट वन, कलोकेशन. कलोकेशन क्या है, लेट्स सी द एमसीक्यू. पहले इसकी जरा कलोकेशन क्या है, उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे. अ कलोकेशन इज 2 or more words that often go together, जो हमेशा एक साथ रहते हैं. आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हो तो इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं साइंस की. बेटा, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या है, पावरफुल. एम आई राइट? और पावरफुल का सिनोनिम क्या है, स्ट्रॉन्ग. जब आप एसिड के साथ यूज करते हो केमिस्ट्री के अंदर तो आप क्या कहते हो, पावरफुल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड. पावरफुल क्यों नहीं कहते, क्योंकि आप कहेंगे सर हम तो लिखते ऐसे हैं, हमने पढ़ा ऐसे है, हमने सुना ऐसे है. ये जो कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ हमेशा वैसे लिखा जाता है, वैसे सुना जाता है, वैसे पढ़ा जाता है, ये जो वर्ड की पेयरिंग है इसी चीज को कहते हैं क्या, कलोकेशन. तो आपको सेंटेंस में कलोकेशन की बेस पे भी ब्लैंक्स दी जाती हैं, जिसमें होता क्या है कि एक वर्ड है उसके साथ दूसरा वर्ड, क्या वो कलोकेट होता है या कलोकेट नहीं होता. ये खासा इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं जी दूसरा, दीज कॉम्बिनेशन जस्ट साउंड राइट टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हु यूज देम ऑल द टाइम, और ऑन द अदर हैंड
अदर कॉम्बिनेशन में बी अननेचुरल एंड जस्ट साउंड रॉन्ग, ये गलत होंगे, मतलब पावरफुल एसिड कह दिया तो गलत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे तो ठीक होगा। अब इसकी एक एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एन एमसीक्यू। लेकिन अब एक और भी डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो हियर वी गो। देखिए वर्ड है डिसियन, क्या है वर्ड? डिसियन है, क्योंकि केमिस्ट्री के कलोकेशन हमने केमिस्ट्री से ही एस्टैब्लिश कर ली। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये खूबसूरत सा, तो इसमें देखते हैं कि कलोकेशन क्या है, डिसियन के साथ क्या क्या कनेक्ट होता है। अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है कोई मसला नहीं। कम टू अ डिसीजन, ये भी ठीक है। फिर आप कहते हो मेक अ डिसीजन, ये भी ठीक है। रीच अ डिसीजन, ये भी ठीक है। टेक अ डिसीजन, ये भी ठीक है। लेकिन अनाउंस अ डिसीजन, ये ठीक नहीं, ये भी हमारे पास करेक्ट है। इसका मतलब है डिसीजन के साथ ये सारे वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर एक वर्ड आता है, मैं कहता हूं गेट अ डिसीजन, इज इट एक्सेप्टेबल? नो, हमें इसको स्किप करना है, और ये गया। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है ग्रैब अ डिसीजन, इज इट करेक्ट? नो। अब अगर वर्ब की बात करें तो अराइव भी तो वर्ब था, कम टू भी तो वर्ब है, मेक भी वर्ब है, रीच भी वर्ब है, अनाउंस भी वर्ब है, ये सारे वर्ब ही तो हैं, तो ग्रैब क्यों नहीं आ सकता? अब हम कहेंगे ग्रैब जो है वो डिसीजन के साथ कुछ अननेचुरल है, या यूं कहें कि नेटिव इसे एक्सेप्ट नहीं करते, लिहाजा ये हम नहीं कर रहे, ये भी गया। फिर एक और देते, चलो यार फ्लो कर ले, ये भी तो वर्ब ही था, ये भी इसके साथ अटैच नहीं होता। इस चीज का नाम है कलोकेशन। तो आपको जो एमसीक्यू आता है समटाइम इस बेस पे भी आता है। तो अब चलते हैं हम डेफिनेटली अपने एमसीक्यू की जानिब। द कारवान विद विच क्रिस्टोफर वाज ट्रैवलिंग इंसिस्टेड ऑन अ लेंथी डिटूर टू वाटर देयर कैमल्स। ये एमसीक्यू मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी इसके रेफरेंस दिया था, डिस्कस करवाया था, बेसिकली आपके पास पेपर में से है। ऑप्शंस है टेकिंग, हैविंग, मेकिंग, ट्रैवलिंग। क्या आंसर था इसका? हाँ जी बताएं। अब किस बेस पे था? अब बेसिकली आपने देखना है कि डी टूअर के साथ कौन सा वर्ब अटैच होता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे हम यहां पे देख रहे थे कि इसके साथ ये यूज होते हैं, समझ आ गई बात? इसके साथ ये यूज होते हैं, ये यूज नहीं होते, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे। इसी तरीके से हम यहां पे भी इसके क्या देखेंगे, इसके हम यहां पे भी कुछ देखेंगे कि ये वाला वर्ड इसके साथ लगता है या इसके साथ ये वाला वर्ड यूज नहीं होता। तो अब कौन सा वर्ड लगना चाहिए? कलोकेशन क्या है? टेकिंग अ डिटूर, हैविंग अ डिटूर, ट्रैवलिंग अ डिटूर, मेकिंग अ डिटूर। डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस इज मेकिंग अ डिटूर। तो ये आपके पास इसका आंसर था, इसे कहते हैं कलोकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कलोकेशन ऑफ मेक और डू, ये एक इसका मैंने रेफरेंस दे दिया आपको कि हाँ जी आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। मेक अ फ्यूचर, मेक चार्ज, मेक मनी, मेक एन एफर्ट्स, मेक फ्रेंड्स, मेक अ डिसीजन, मेक फन ऑफ समबॉडी, मेक हर ब्रेकफास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उस साइड पे डू के हैं। मेक और डू की कलोकेशन एट लीस्ट कंपल्सरी है आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। इसके ऊपर ब्लैंक्स बन सकते हैं, इसके ऊपर एरर्स बन सकते हैं, इसके ऊपर स्पॉट एरर हो सकते हैं, कोई सा भी एमसीक्यू इस पे हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाएं जी, होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या हैं? अब आप अक्सर पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े लेकिन उसके पेपर ही नहीं दिए, लिहाजा याद ही नहीं है, सेंटेंसेस में यूज ही नहीं किया, तो फर्स्ट ईयर में पेपर ही नहीं दिए। तो अब डेफिनेटली आपको पेपर भी देने हैं और साथ चीजों की फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी करनी है। तो मेक इट क्लियर कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर होमोफोन्स के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसे आम भाषा में आप क्या कहते हो? पेयर ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं होमोफोन्स क्या है। ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, ऑरिजिन और स्पेलिंग्स। उनके स्पेलिंग्स या उनका क्या होगा? सेम प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड एक जैसी होगी, स्पेलिंग भी नहीं होगी, साउंड एक जैसी होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। लाइक न्यू एंड न्यू, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। क्लियर होगी बात? अब इसका एक एमसीक्यू देखिए। दे समटाइम्स फील अ ब्लैंक फॉर द माउंटेन्स एंड द सी, ये आपका पास पेपर का है। यर्निंग, येपिंग, येलिंग, यील्डिंग, किया उसने कंफर्म, ये एग्जैक्ट आपका पास्ट पेपर में आया हुआ है। अब ये क्या था? ये उसने एक जैसे साउंड के वर्ड्स बना के आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना दी, यर्निंग, यैपिंग, येलिंग, यील्डिंग। अब है क्या? ताकि आपको कम से कम अगर आपने साउंड की बेस पे कुछ रट्टा लगाया हुआ है तो वो उसने मिक्स कर दिया। तो आंसर इसका क्या है? कि इसका आंसर है डेफिनेटली यर्निंग, ठीक है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर यर्निंग है, राइट। अब मैं आपको कुछ होमोफोन्स की लिस्ट दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, इसको संभाल के रखेंगे। ये सारी चीजें देखें, ब्रेक, ब्रेक है, सेल, सेल, सेंट, सेंट, डाई, डाई, फ्लोर, फ्लोर, फॉर, 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 फॉर,
हील हील, हेयर हेयर, और आइडल आइडल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लें एट लीस्ट, ये आपको एक आइडिया देना था कि होमोफोन्स होते क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, दैट इज डेफिनेशन। और डेफिनेशन बेस्ड में क्या है, द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस ब्लैंक दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस, दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस। सारी क्या सिम्टम्स, भाई नहीं तो सिम्टम्स तो अलामात होती हैं। मेडिसन, इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन है तो मेडिसन क्यों नहीं है, मेडिसन है तो इंजेक्शन क्यों नहीं है। अगर आपके ऑप्शंस में आ जाए क्लैश, इसका मतलब दोनों नहीं है। जब आपको ये डाउट पड़ जाए ना कि यार ये क्यों नहीं है, ये दोनों तो एक ही हैं, तो इसका मतलब है यहां पे आपको कुछ और ढूंढना है, और वो कुछ और क्या है, दैट इज समवट जिसके अंदर सारी चीजें आ जाए। डेफिनेशन इसकी क्या थी, ये जरा देखिए। डेफिनेशन की इसकी है दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस, दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस। तो ये पेनेसिया की है, मेडिसिन या इंजेक्शन की ये नहीं होती। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज शेयर करूंगा, ठीक है। आप इसका तरीका क्या बनाओगे, ये आपका आ रहा है कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, कोई 4-5 एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, मैं एमसीक्यू की स्लाइड दूंगा, आपने फिर स्लाइड को पढ़ने के बाद पॉज करना है, उसका निकालना है आंसर, फिर अगला आंसर जब मैं बताऊंगा तो आपने टैली कर लेना है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई और उसको कैसे इंटरप्रेट करना था। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1 है, मैनी पीपल एट दैट टाइम बिलीव दैट स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड, हाउएवर, हाउएवर यूज किया, कंट्रास्ट आ गया। क्या आ गया बच्चे, कंट्रास्ट आ गया, अंडरलाइन कर ले। हेल्प फाउंड दैट मैनी मार्केट स्पाइसेस वर ब्लैंक बैक्टीरिया मोल्ड्स एंड यीस्ट्स। तो ये इसका आपके पास आ गए ऑप्शंस, ठीक है। अब आप इसे देख लो, आप समझ लो। अब आपने क्या करना है, इसको पॉज किया, गुड। अब आप इसका आंसर निकालें, ये देखें क्या है, स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड, हाउएवर। प्रिजर्व का अपोजिट क्या होगा बेटा, एक्टिव, डिवॉइड, इंप्रूव्ड के डिस्ट्रॉयड। अब प्रिजर्व का अपोजिट जो होगा वो डिस्ट्रॉयड ही होगा। क्लियर। अब अगला एमसीक्यू, after sitting in the sink for several days, the dirty food encrusted dishes became क्या। अब आप इसके भी ऑप्शंस देख लें, पॉज करें, आंसर निकालें। अब हम चलते हैं आगे। आफ्टर सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज, काफी देरों तक वो सिंक में पड़े रहे थे, तो उनका मीनिंग क्या होगा, मेल एडोरस, मेल ओडोरस। मेल ओडोरस किसे कहते हैं, मेल ओडोरस का मतलब होता है जिससे बदबू आए, कि अगर डिशेस काफी दिनों तक सिंक में पड़ी रहेंगी डेफिनेटली वो महकेंगे तो सही, और वो महक कैसी है वो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो here we have question number 3. Philip's blank tone endeared him to his comical friends, but irritated his serious father, aloof, jesting, grave and earnest. भाई देख लो, समझ लो कि क्या है, उसके दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी थी। कौन से वाले दोस्त, कॉमिकल, इसका मतलब है उसकी टोन भी तो कॉमिकल होगी। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हियर इज द आंसर। जेस्टिंग किसे कहते हैं, फनी को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 4. Here we have the statement and the options. The soldiers received a military to inspect all their vehicles before traveling. क्या करेंगे, अलॉटमेंट है, डोमिनियन, अफेक्टेशन, मैंडेट। सोल्जर्स के पास क्या होता है किसी चीज को जज करने के लिए, दैट्स अ मैंडेट। मेथड वही है, आप इसे पॉज करेंगे, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, रॉन डिडंट नो द रूल्स ऑफ रग्बी बट ही कुड टेल बाय द क्राउड्स रिएक्शन दैट इट वाज अ क्रिटिकल ब्लैंक इन द गेम, एक्लेमेशन, कन्विक्शन, जंक्चर एंड इनिग्मा। क्या आना चाहिए जी, क्राउड शदीद शोर कर रहा है, तो आंसर क्या है कि यहाँ पे उसने उसके क्या दिया, उसका देखा कि उसका जो है क्राउड्स रिएक्शन कहाँ पे आएगा, जंक्चर के ऊपर आएगा, कि बड़ा जबरदस्त मैच चल रहा है, तो क्राउड्स का रिएक्शन जो ऐसा था। ठीक होगी बात। अब आपने सेंटेंस कंप्लीशन की तीनों कैटेगरीज के ऊपर डिस्कशन सुन ली, उनकी टीचिंग सुन ली, उनके लेक्चर सुन लिए, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाए। अब आपने मजीद इसका जब टेस्ट आना है उसे अटेम्प्ट करना है और फिर उसकी डिस्कशन भी गौर से सुननी है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड गुड लक।